लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको हमारा बैच याद है कि नहीं बताइए, और हम लोग किस तरह के स्टूडेंट्स। आप तो हमारे यहाँ 5 स्टूडेंट थे। 99 2000 दैट वाज द टाइम। और बहुत ही बिंदास किस्म के स्टूडेंट थे आप लोग। मस्तीखोर कहे तो कम नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई में भी यू वर टू गुड। ऑल 5 ऑफ यू वंडरफुल। आपके बैच में मुझे एक विविड मेमोरी ये था कि हम लोग ना सिर्फ बात करते थे। यू हैड ओनली वन रूल, वॉट एवर यू आर टॉकिंग, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। टुडे आई कैन से दैट आई हैव लर्नड क्वाइट अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन and English. How did you develop such a way of unconventional teaching style? इसका जवाब देने के लिए आई हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट इन माय past. It was my class teacher, Mr. B.K. Jha, whom I always remember with a lot of love and respect. And my first love, DAV organization, where I joined as a teacher in 1988, DAV Immunity and subsequently to DAV Alkusha. So there, let me accept it honestly that I studied in a government school and that was Hindi medium. पुटकी राजकीयकृत उच्च विद्यालय बिहार सरकार। अंग्रेजी बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। Even our English teacher Janardhan Singh Chaudhary sir used to teach us English through Hindi. We did not learn English much, but my father was an English teacher as well as a Bengali teacher, so I could learn and I had interest. When I became a teacher in DAV Alkusha, I had the habit of participating in any sort of activities that CBSE would organize, and in those days CBSE was coming out with a curriculum, Interactive English, in collaboration with Trinity College London. I had an opportunity to participate extensively in various programs. I have always participated. I had another habit of applying for jobs, even though in most of the jobs I would not leave DAV and go, like Kendriya Vidyalaya, ad hoc teacher. And I just wanted to attend the interview so that I could understand that how much knowledge actually I had. And as I was telling, in CBSE curriculums, there was one Mr. P. Seshu Babu who had gone to UK and they had come out with lots of plannings. And there I realized that language cannot be taught in isolation. Books are just mere tools. But if we are learning to communicate, it is very essential that we learn in a playful method. That is what CBSE's motto was also in those days. So in DAV Alkusha, even in those days, I started going for audio recording, group activities and audio recording. And the students used to get a lot of interest and used to wait for the classes because they could talk. They could freely talk and they had no fear. Fearlessness is the first requisite of mankind. And most often we tell the children this subject is difficult, you cannot do. These are all very negative thoughts. We have to allow the children to grow. So that is where I picked up DAV Immunity and DAV Alkusha. थोड़ा सा प्लानिंग तो करते हैं हम। जैसे अगर कुछ पढ़ाना है तो आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि नोन से अननोन में लेके जाओ। आप पहले शुरू करो विद जनरल टॉक। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल कि मुझे आज लिखाना है एक पैराग्राफ ऑन ट्रैवलिंग, और सपोज कि मुझे पता है कि क्लास का कोई स्टूडेंट कश्मीर गया है। सो आई विल कम टू द क्लास एंड आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू हिम कि आप कश्मीर में कैसे ट्रेवल किए, कैसे गए, प्लीज टेल द क्लास, शेयर इट। एंड आई विल एनकरेज द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। देखो ये तुम्हारा दोस्त कश्मीर गया था तो हमें तो जानकारी चाहिए, कैसे गया, कुछ खाया कि नहीं खाया। आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग बाय एडिंग ऑफ कोर्स ह्यूमर टू इट, बिकॉज ह्यूमर इज वेरी एसेंशियल। यू कैन नॉट बी ऑलवेज सीरियस एंड देन लाइफ बिकम्स मोनोटोनस। तो ऐसे करके बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो पूछे क्या क्या खाया, कैसे गया, कैसे रिजर्वेशन हुआ, फ्लाइट से गया, ट्रेन से गया, कश्मीर में क्या क्या देखा, क्या उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये सारे डिस्कशन करने के बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे ऑन पैराग्राफ राइटिंग ऑन ट्रैवलिंग। तब तक बच्चों के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट इज व्हाट आई जनरली अप्लाई। आप जब स्टार्ट किए थे उस समय का जो स्कूल का जो एम्बियंस था और आज के डेट का जो स्कूल का एम्बियंस है, उसमें क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? If we talk of changes that we have witnessed over decades, उस समय स्कूल में जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल हुआ करता था वो बहुत ही बेसिक हुआ करता था। आज के डेट की तरह मल्टीमीडिया क्लासेस, इवन डिजिटल लैब्स ये नहीं
नहीं था। मुझे याद है डीएवी अलकुशा में एक कंप्यूटर रूम हुआ करता था, एक कंप्यूटर टीचर भी थे मिस्टर साहू, जो कि हमारे दोस्त भी थे। तो उस जमाने का कंप्यूटर मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि उसको उठा के कहीं से कहीं ले जाया जाए, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड फॉरगेट अबाउट अलाउिंग द चिल्ड्रेन टू लर्न, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल। और बेसिकली टीचिंग जो था वो चॉक एंड टॉक ही था, एक्टिविटीज तो होता नहीं था। प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, हाँ कुछ था। और जैसे हम लोगों ने किया था धनबाद में, चूंकि हम थे तो धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि अभी आईआईटी हो गया है, उसमें एक इनर व्हील क्लब था। एक प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के थे डॉक्टर सिंह, वो काफी एक्टिव थे और स्कूल लेवल के 11-12 के स्टूडेंट्स को वो बहुत ही प्रोत्साहित करते थे कि वो पार्टिसिपेट करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो हम बहुत बार स्टूडेंट्स को लेके वहां पर गए हैं एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो स्कूल्स हैव प्रैक्टिकली बिकम वेरी मच टेक्निकल और टीचर्स को भी बदलने की कोशिश जारी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि टीचर्स बदल गए हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं। एंड मेनी टीचर्स आर देयर नाउअडेज हु आर टेक्निकली वेरी मच अपडेटेड। आज के डेट में पढ़ाना और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा चैलेंजिंग होगी। दूसरी बात है कि पहले के जमाने में जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट इतना था नहीं, तो नॉलेज एक्सपोजर भी कम था। और आज के डेट में स्टूडेंट्स का नॉलेज एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अगर कोई टीचर क्लास 11-12 में बिना प्रिपरेशन का चला जाए तो उसका खैर नहीं। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट थे, लेकिन वट एवर द आउटपुट वुड बी, दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड लाइक व्हाट इज रिफ्लेक्टेड नाउअडेज। कि उस जमाने में क्लास 12 के स्टूडेंट से जो हम एक्सपेक्ट करते थे, आज के जमाने में वो हम क्लास 7-8 के बच्चों से ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और वो कर भी देते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, साइंस हो। अब मैथमेटिकल कुछ टर्म्स है जो 11-12 में ही पढ़ाया जाता है, उसका हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है रिगार्डिंग साइंस और लैंग्वेज और एनीथिंग, दैट लेवल हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। किस तरह का टीचर आप बनना चाहते थे और वैसा बने कि? मैं खुद को टीचर से पहले एक अच्छा इंसान देखना चाहता था, ए गुड ह्यूमन बीइंग जो दूसरे के बारे में सोचे। इट्स वेरी एसेंशियल दैट वी थिंक अबाउट अदर्स, वी हैव टू बी सेंसिबल एंड सेंसिटिव। और बाकी बचा प्रोफेशन, तो कोई भी प्रोफेशन में अगर आप अपने पसंद से जा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रहेगा। देयर इज अ टर्म टीचर बाय चॉइस एंड टीचर बाय चांस। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जगह आप पाएंगे टीचर बाय चांस, कहीं कुछ हो नहीं रहा तो चलो टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लिए टीचर बन गए। ऐसे नहीं होता है। यू कैन नॉट गिव योर 100% फॉर दैट। आप अगर जिस प्रोफेशन को आप चाहते हैं उसी प्रोफेशन में अगर आप लगे रहें तो आपको उसमें रिसर्च करने की कोशिश जारी रहेगा। और जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम उस फील्ड में डेवलप नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में, चाहे आप मेडिसिन ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, लैंग्वेज ले लो, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और खुद को अपडेटेड रखना। अगर आज के डेट में भी मैं अपने आप को नहीं बदलता समय के साथ साथ, तो क्या मैं अभी भी चौक लेके ही स्टूडेंट्स को पढ़ाता? ये पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में चौक के जगह वो स्टाइलस आना है आपके हाथ में, ब्लैक बोर्ड के जगह आपके हाथ में लैपटॉप होना है, स्मार्ट बोर्ड्स होना है। स्मार्ट बोर्ड सिर्फ होने से ही नहीं होगा, वो टीचर्स को भी स्मार्ट बनने पड़ेगा, प्रिंसिपल को, टीचर को। स्कूल को स्मार्ट बोर्ड नहीं बनाता, स्कूल को स्मार्ट माइंडसेट बनाता। काम करते रहना और इसके लिए एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों जरूरी, और साथ में रिसर्च कीजिए एंड देन लिव योर लाइफ। दैट इज व्हाट द मंत्रा इज। स्पीकिंग ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, मैं जानती हूँ कि आप अभी साइकिलिंग करते हैं, उससे आपको अपने टीचिंग मेथड में चेंजेस करने का कुछ आइडियाज आता है? एक्चुअली आई कीप ऑन बैंकिंग ऑन आइडियाज। तो जैसे कहीं भी जाते हैं तो ये हमारे दिमाग में रहता है कि इसको टीचिंग के साथ इनकॉर्पोरेट कैसे करें। अब मान लीजिए जैसे मैं अभी वारीचोरा के बारे में सोच रहा हूँ इन मेघालय, और ऑलरेडी मैं क्लास 11 में स्टूडेंट्स को इसका प्रोजेक्ट दे चुका हूँ कि आप वारीचोरा ट्रेवल करोगे, इसका टोटल प्लान बनाओ। दे हैव टू डू रिसर्च वर्क, दे हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वारीचोरा कहाँ है, कैसे जाया जा सकता है, कितना डिस्टेंस है, कैसे कोलकाता से कैसे जाएंगे, दुर्गापुर से कैसे जाएंगे, कितना एक्सपेंडिचर आएगा। तो दिस इवन जस्ट बिफोर गोइंग टू वारीचोरा, एंड आई हैव ऑफ कोर्स शेयर्ड सम ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सोटिक फोटोग्राफ्स ऑफ वारीचोरा टू जनरेट इंटरेस्ट इन दैट, एंड दैट इज वर्किंग। तो इसी तरह से कहीं भी हम जाते हैं तो पढ़ाना वो हमारा बैकग्राउंड में हमेशा रहता है कि इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। एक्चुअली आवर आइडियाज
should always be incorporated and then we can put it into action. That is very essential. आपके लिए इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है या फिर एक डोरवे है अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए? English I never considered as a subject. English is a language that helps us to communicate with the rest of the world. आज ऐसा है कि even in India आप साउथ में जाओगे वहां लोग बहुत सारे जगह हिंदी भी नहीं समझते हैं. How will you communicate? And when you think of communicating, then initially from the very beginning you will not keep on giving a lot of stress on accuracy and then learning will be easier. But if you take it as a subject, तब क्या होता है? ये एक सब्जेक्ट है, इसमें 90 प्लस आना चाहिए. आपको सीखने की जरूरत नहीं है. आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर दे दो, आपको मार्क्स आना चाहिए. सब्जेक्ट or learning a language, there is a lot of difference. Even after learning a language, if we cannot communicate properly, if we cannot articulate, if we cannot recite and appreciate a poem, then what is the use of learning this language? I do not consider this as a subject. That is the problem that most of the parents earlier would not agree with me, because for most of the parents it's nothing but just a subject where the child must get 90% plus. But nowadays, those who come to me, those who are in contact with me, they understand that if they can communicate, even if you are an engineer and if you are unable to communicate in a convincing way, what is the use of what you know? Absolutely it is of no use. You may be knowing a lot many things, but until and unless you are able to communicate in a very convincing way and share it with others, your knowing is useless. And any language, and particularly here English, is a means for your communication. मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके आज के स्टूडेंट्स भी अपना कुछ इमोशनल या पर्सनल सपोर्ट के लिए आपके पास आते हैं, तो आप उन मोमेंट्स में कैसे नेविगेट करते हैं विदाउट इंट्रूडिंग इनटू देयर पर्सनल स्पेस? खलील जिब्रान की एक पोएम है चिल्ड्रेन. ये कविता मुझे सही रास्ता दिखाता है. मैं तो कहूंगा कि इस कविता को हर पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, हर टीचर को पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट करे. क्योंकि जिब्रान जी वहाँ कहते हैं एक जगह, पेरेंट्स को कहते हैं, बच्चे तुमसे आते हैं लेकिन तुम्हारे तरह नहीं होंगे वो, और बच्चों को अपना दिमाग मत दो क्योंकि वो खुद का दिमाग लेके आते हैं और दिमाग को डेवलप करते हैं. यू आर इन द प्रेजेंट एंड दे आर द फ्यूचर. अपने तरह मत बनाने की कोशिश करो, तो छोड़ दो, उनकी तरह बनने दो. आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग स्पेस, वेदर इट इज माई चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स और एनीवन एल्स इन एनी रिलेशनशिप. आई बिलीव दैट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज अ वंडरफुल रिलेशनशिप, लेकिन उसमें भी अगर हम खाली एक्सपेक्ट करते रहे, उम्मीदें करते रहे कि ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, तो फिर वो थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है और इसमें रिलेशनशिप टिकता नहीं. ये किसी भी रिलेशनशिप, इट इज वेरी एसेंशियल कि हम स्पेस दें. आई बिलीव इन अलाउइंग चिल्ड्रेन टू ग्रो एट देयर ओन पेस, लिव देयर ओन लाइफ. जबरदस्ती किसी से भी कोई भी काम नहीं कराना चाहिए. जबरदस्ती रिलेशनशिप भी आप रख नहीं सकते हैं. सो इट इज वेरी एसेंशियल यू लिव योर लाइफ, डू नॉट इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ अदर्स एंड अलाउ अदर्स टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. आपको सम्मान ऐसे ही मिल जाएगा, आपको प्यार ऐसे ही मिल जाएगा. ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि स्पेसिफिकली आपको थैंक यू बोलने के लिए किसी ने कुछ स्पेशल मैसेज किया है, कोई आपका पुराना स्टूडेंट? थैंक यू तो सिर्फ दो शब्द नहीं है, थैंक यू तो दिल से आता है, और ना बोलते हुए भी उस शब्द को पहचानना, यही तो हम टीचर्स की खूबी है. यस, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर एंड आई कैन फील देयर लव, their smile, their gestures, their love, their spontaneity, their feelings, and I am overwhelmed. I would not like to take the name of any particular student, but there have been always many students who have done it. जब हम लोग फिर से आपसे बात करते हैं, फिर से जुड़ते हैं, when we get back to you, तो स्पेसिफिकली आपको कुछ ऐसा मोमेंट्स याद आते हैं हमारे, या फिर ऐसा कोई एक जैसे मोमेंट की जिससे आपको लगा कि हाँ मैं एज अ टीचर आई एम सक्सेसफुल? If you talk of remembering, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा, आपका क्लास मुझे याद आ रहा है, आपका एक्टिविटीज भी याद आ रहा है, कैसे आप उंगली पकड़ के चलते थे. और एक बार हम लोगों ने एक्टिविटी वीडियो रिकॉर्डिंग किया था. वो मेरा पहला वीडियो रिकॉर्डिंग था दुर्गापुर में, और इन दोज डेज रिकॉर्डिंग वाज अ कुम्बरसम प्रोसेस, इतनी आसान नहीं था. राज स्टूडियो से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर एक वीडियो कैसेट बना के दिया था. दैट रिकॉर्ड इज नो मोर देयर, बट दैट इंसिडेंट रिमेन्स. और जब आप लोग
को अब हम देखते हैं यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रही बात जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया, सक्सेसफुल टीचर, ये दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी काम करने का बहुत समय है, अभी पूरा काम मेरा हुआ नहीं है। बट इन 2014 व्हेन आई वेंट टू एजोन मल्टीपर्पज, बहुत जल्द 2016 में मुझे एक क्लास मिल गया, क्लास 6 में 32 स्टूडेंट थे उस समय उस क्लास में। उस क्लास को मैंने 6, 7, 8, 9, 10 ग्रूम किया। इट वॉज ए बंगाली मीडियम स्कूल, बट मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन दैट क्लास, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ नर्सिंग में चले गए हैं। एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी टू सी देम, एंड आई फील वेरी एक्साइटेड टू सी देम टॉक इन इंग्लिश। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू माई क्लास टीचर मिस्टर बीके झा। स्टिल आई डू नॉट feel कि I have become successful. आप भी जानते हैं मेरा एक प्री स्कूल है, तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, उन्हें कैसे कोई भी लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा लगाव बढ़ा सके? आपको लैंग्वेज के प्रति रुझान, इंटरेस्ट जनरेट करने पड़ेगा। आप उसके लेवल के बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं या टीचर्स ऐसे होते हैं, अब वो सपोज कि इंग्लिश में मास्टर डिग्री किए हैं और क्लास 10 में गए हैं, वो मास्टर डिग्री लेवल का लेक्चर झाड़ने लगेंगे, तो बच्चों के दिमाग से के ऊपर से चला जाएगा, और जब भी वो समझ नहीं पाएगा तो दैट विल बिकम अनइंटरेस्टिंग। तो आपको बच्चों के लेवल में आने पड़ेगा, और लेवल में आके उसके साथ इन अ प्ले वे मेथड यू हैव टू इम्प्रूव। लैंग्वेज में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जिस भाषा का प्रयोग करना है, हिंदी में करना है, तो हिंदी में भी आप बातें कीजिए बच्चों के साथ। बातें करना बहुत जरूरी है। टीचर्स भूल जाते हैं कि लैंग्वेज पढ़ाना है कि लैंग्वेज सिखाना है। लैंग्वेज इज अ स्किल, लैंग्वेज इज नॉट नॉलेज। अब मान लीजिए कि आपको कोई स्किल हमें सिखाना है, जब तक वो ड्राइवर सीट में नहीं होगा तब तक बच्चा कभी सीखेगा ही नहीं। इसी तरह से भाषा में भी जब तक वो बोलेगा नहीं तो सीखेगा क्या? बोलने का स्कोप कहाँ है? कोई भी भाषा में बच्चों को बोलने का स्कोप देना जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल टू मेक द चिल्ड्रेन टॉक। इट इज वेरी एसेंशियल टू मेक द चिल्ड्रेन आस्क क्वेश्चंस। और किसी भी सवाल में उसके ऊपर आप हंसो मत। अगर आप हंस दिए तो फिर दोबारा वो बच्चा सवाल नहीं पूछेगा। लेट द चाइल्ड आस्क क्वेश्चंस, मोर आंसर्स, मोर लर्निंग, मोर कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज। और इसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। So if we want to have quality education in the field of administration also we have to see to it। और जरूरत पड़े तो एक हेल्पिंग हैंड दे देंगे, 2 टीचर्स को क्लास में भेजेंगे। और बच्चों के क्लास में खास करके जब भाषा का क्लास होगा, लैंग्वेज का क्लास होगा, अगर क्लास चुपचाप है, साइलेंट है, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। बड़े डिसिप्लिन है, कुछ नहीं होता है उससे। अगर शोर शराबा कुछ हो रहा मतलब कुछ हो रहा है, देन ओनली प्रॉपर लर्निंग विल टेक प्लेस। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। थैंक यू सर, आज का समय देने के लिए। Thank you. You too. It was my pleasure to share my experiences with you and reliving my past, and wish you all success in life.